جا کر آئے گا 15 دن کے پورے ہونے سے پہلے درمیان سے ظاہر جا کر آئے گا۔ جب ماں نے دعا مانگی مجھ کو ہوتا بیٹا، تو راستہ اس میں بھی معصوم قم کا تھا، قم کا تھا۔ مینا کے اندر گزرا 9 کی فجر سے پہلے اگر لے کے گئے تو چلے جائیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد اب 9 ذی الحجہ ہے، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھنا، ایک مرتبہ پڑھنا مرد کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ سے واجب ہے۔ مقیم پر یہ واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں، پڑھنا افضل ہے۔ 9 ذی الحجہ کا عرفات میں پہنچے، عرفات میں آپ کو 9 ذی الحجہ کو لے جایا جائے گا۔ حج کے 3 فرض 6 واجب ہیں، حج کے 3 فرض 6 واجب ہیں۔ تب آپ کیا کریں گے؟ حج کا احرام اپنی بلڈنگ سے باندھیں گے، چاہے حرم سے باندھ لے چاہے اپنے بلڈنگ سے باندھ لے۔ 2 رکعت نماز چاہے حرم میں پڑھ لے چاہے اپنے بلڈنگ سے پڑھ لے، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن بند رہتا ہے، اپنے بلڈنگ کے اندر ہی نماز پڑھ لے 2 رکعت احرام کی۔ حج کی نیت کے لیے حدود حرم کے باہر نہیں جانا ہے، حدود حرم کے اندر ہی اپنے بلڈنگ میں ہی آپ حج کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرمائیے، میری طرف سے قبول فرمائیے۔ یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھنے کے بعد مینا چلے گئے، وہاں بھی نمازوں کے ساتھ تلبیہ کا ذکر کا ورد جاری رکھیں گے۔ عرفات پہنچیں گے 9 ذی الحجہ کو، عرفات میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے۔ عرفات کا وقوف فرض ہے، حج کے 3 فرائض میں سے حج کی نیت سے احرام باندھ کے تلبیہ پڑھنا ایک فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، عرفات کے اندر وقوف کرنا۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہو گئے حج کے۔ اب عرفات پہنچے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ یہ مسجد نمیرہ نمرہ دونوں بھی بولا جاتا ہے، یہ مسجد نمرہ ہے۔ یہاں پر اس کے قریب میں آپ کے ٹینٹ ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں تو مسجد نمیرہ کے اندر پہنچیں گے۔ وہاں پر 2 نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اور خطبہ ہوتا ہے، اور خطیب کو مکے سے باہر سے بلایا جاتا ہے۔ وہ مسافر ہوتے ہیں، وہ قصر نماز پڑھاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے اگر مسافر ہیں تو قصر کریں گے، مقیم ہیں تو ان کے سلام کے بعد اٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے۔ عمومی طور پر اس کے قریب میں ٹینٹ نہیں رہتے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہی ٹینٹوں میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں تو قصر کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ٹینٹوں کے اندر رہ کر بھی، ٹینٹوں کے باہر نکل کر بھی اصل میں حقوق دعائیں مانگنا۔ عرفات کے میدان میں بلائے ہیں، فرشتوں کو سامنے رکھ کر اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو جی میرا بندہ، بکھرے ہوئے بال، غبارہ ور کپڑے، پسینوں کے اندر شرابور، دیوانہ وار تلبیہ پڑھتے ہوئے میرے پاس آیا ہے۔ اے فرشتوں کہو کہ اس کی کیا مزدوری دے دیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے
اپنے دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنے آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگے گے میں عطا کروں گا۔ تم جس کے لیے جو مانگے گے میں عطا کروں گا۔ خوب منوانا ہے اللہ کو میدان عرفات میں۔ ہمارے آقا مسجد نمرہ کے پاس نمازیں پڑھی ہیں، اور جبل رحمہ کے دامن میں آپ علیہ السلام رکوع کیے ہیں۔ جبل رحمہ ہے، یہ ایک رحمت کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک پلر ہے، اس کے دامن میں ہمارے آقا قبلہ رخ ہو کر غروب تک اللہ کے سامنے خوب روئے ہیں، اور ایک وسیع اور عریض خطبہ دیے ہیں۔ اس خطبے میں کیا فرمائے ہیں؟ اللہ نے کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں دی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں وہی معزز و مکرم ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی عرفات کے میدان میں قرآن کی آخری آیتیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل کی۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، ہمارے خزانے میں جو کچھ نعمتیں تھی اس کو ہم نے تمام کر دی، اور ہم دین اسلام سے رضامندی کا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دیا، ایک خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں اللہ کا دین تم تک کے پہنچایا؟ 3 مرتبہ۔ پھر آپ علیہ السلام شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہیے کہ میں نے ان تک کے آپ کا پورا دین پہنچا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ غائبین تک میرے دین کو پہنچا دیا۔ بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگرچہ میری تم کو ایک بھی بات کیوں نہ معلوم ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب سے شاداب رکھے جو میری بات کو سنے، کیوں کا تو لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا ہمارے ذمہ ڈالے۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ سورج غروب ہوتے تو اڑائی جائے گی، بسیں عرفات کے حدود سے نکل جائیں۔ مغرب کا وقت ہوا عرفات میں، تب بھی آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ ایسے وقت پہ پہنچ گئے کہ ابھی مغرب کا نماز کا وقت باقی ہے، تب بھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ عشاء کے نماز کے وقت کا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ مزدلفہ کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ رات کا منظر ہے، وائلٹ کا کلر کا ریڈ نظر آ رہا، میرون کلر کا نظر آ رہا۔ یہاں پر کیا ہے؟ مزدلفہ اسٹارٹ کیا، بدایا مزدلفہ، نکل گئے عرفات سے، اس کے حدود کے اندر داخل ہو گئے، تو مزدلفہ کے اندر ہمارے کو پہنچنا ہے۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ پہلے مغرب کی 3 فرض، پھر عشاء کے 2 فرض، اگر مقیم ہیں تو 4 فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنت۔ ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ مزدلفہ کے اندر یہ 9 نمازیں ادا کرنا ہے۔ پھر رات میں بنا مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ کنکریاں چننا ہے۔ دیکھو کیسا جو ہے مزدلفہ میں پڑے ہوئے ہیں، کھلے میدان، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی نرم گچی نہیں، کھلے میدان میں، ایک ہی میدان میں بادشاہ بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، شہر کا رہنے والا بھی، دیہات کا رہنے والا بھی،
अनपढ़ भी सब कैसे पढ़े हुए हैं। रात में सियाम कर लो, मौका दे दिया, उठकर कुछ मांग लो, तहज्जुद पढ़ लो, कंकरियां चुन लेना है। क्या करना है? कितनी कंकरियां? 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान को 7 कंकरियां, 11 ज़िलहज्जा को तीनों शैतान को 21 कंकरियां, 12 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को 21 कंकरियां, 21 और 21 42 और 7 49 हो गई। अगर आप 13 ज़िलहज्जा के लिए रुकने की नौबत आ गई तो और 21 कंकरियां, 21 दिया 63 और 7 70 कंकरियां चुन लें। एहतियातन कुछ ज्यादा कंकरियां चुन लें। कंकरियां चुनकर आप लोगों के पहुंच दिए गए। हज कमेटी के जो हुज्जाज किराम हमारे पास से टिकट कलेक्ट किए हैं उनको भी दिए ना, और सईद टूर्स एंड ट्रैवल के तवस्सुस से जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए भी, आज़मीन हज के लिए भी इस तरह की कंकरियां दी गई। कहीं ये भूल गए तो आप कंकरियां कहाँ लेना जरूरी नहीं, बाटल में डाल लो, कहीं भी मना रख लो। 70 कंकरियां कम से कम, ज्यादा रख दिए तो कोई जुर्माना नहीं, कम रख दिए तो कम पड़े तो कोई देने वाला नहीं। इसलिए कंकरियां ज्यादा चुन ले, कभी किसी को जरूरत पड़ी तो वहां पर सही बनकर दूसरों को भी देने वाले बन जाए। मुज़दलिफा के मैदान में गाड़ी तो नहीं रहेगी, ऐसी एक चटाई लेके जाओ, यही चटाई बिछाओ, इसी पर सो, इसी पर नमाज पढ़ो, फिर निकलते वक्त चटाई को वहीं छोड़कर निकल जाओ, फिर डोले को जाने की जरूरत नहीं। ये चटाई आप ले लो, अच्छा है। आपको मुज़दलिफा खुला मैदान, मिट्टी में, कंकरों में, मिट्टी में जहाँ चाहे पड़े रहना है। अब वहां पर जो है ना शिकायत अल्लाह से करना, अल्लाह आप बुलाया हुआ पड़ा हुआ हूँ, आप मिट्टी में लुत्फ होने के लिए मैं लुत्फ पाऊं कि मेरे सोने को कबूल फरमा ले। कभी गाड़ी के बगल में जिंदगी में सोया नहीं, कभी एसी के बगैर जिंदगी में रहा नहीं, कभी जो है ना मेरे लिए खुदाम फिरते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह मेरे बड़े होने को कबूल फरमा ले। रात गुजार लिए, सुबह हो गई, सुबह फजर का वक्त होते ही अव्वल वक्त में हम नमाज पढ़ लें फजर की। असल वकूफ मुज़दलिफा ये वाजिब है। क्या है? वाजिब है। ये फजर के बाद वकूफ करना है, रात में निकलने का नहीं। मगरिब इशा पढ़ लिए, निकल के दूसरे मुज़दलिफा आधा खाली होता, रात में जाता, देखा देखी हम भी निकलेंगे, वाजिब जुम्मे रह जाता है। इसलिए कब निकलना है? फजर की नमाज पढ़कर थोड़ी देर ठहर कर दुआ कर कर मुज़दलिफा से सूरज की रोशनी तेज होने से पहले निकल जाना। चलिए निकल गए, जाना क्या है? दूसरे पूरे लोग जमरात को जाते हैं कंकरी मारने के वास्ते, थके थकाए हुए पूरे जो है ना पसीने के अंदर शराब और आराम का तकाज़ा है, वहां जाना जरूरी नहीं। टेंट पर पहुंच जाओ, टेंट को लोकेशन अपने पास सेव कर लो, टेंट को पहुंच जाओ। टेंट में पहुंचने के बाद सुकून से आराम कर लो, नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना खा लो। कंकरी मारने का वक्त सुबह साजिश से लेकर ज़वाल तक अफजल है, ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब तक इजाजत है, गुरूब के बाद से लेकर सुबह साजिश तक आपको आकर के हंगामी हालात के हिसाब से इसकी इजाजत है। पूरे 24 घंटे है, अर्जेंट जाके कई को परेशान होते हैं। आजकल हुकूमत की तरफ से निजाम बना हुआ है, हर मीना के कैंप के लिए टाइमिंग मुकर्रर किया गया है। ये कैंप वाले जमरात तो यही टाइम पे जाएंगे, इससे पहले जाने नहीं देंगे। हुकूमत की तरफ से मुअल्लिम का ऑर्डर होता है, गेट तो लॉक कर दो, ये टाइम से ये टाइम तक तुम्हारे हाजों को बाहर जमरात के लिए निकाला जाएगा, उससे पहले नहीं। कंकरी हो गई। 3 कामों में तरतीब वाजिब है। पहले कंकरी,
कहाँ है भाई जबरा कहाँ है? ये देखो शैतान कितना चौड़ा हो गया। पहले पुराने तस्वीरों में कितना दिखता था, कितना चौड़ा हो गया, तकरीबन 80 फीट चौड़ा हो गया। सीमेंट कंक्रीट की मजबूत दीवार बनी हुई है। करोड़ों इंसानों के पचने खाकर जैसे का ऐसा ठहरा हुआ है। आप मिना से निकले हैं, ये इब्तिदाई हिस्सा है। यहाँ पर ठहर कर कंकरी मारेंगे, पीछे का पूरा ग्रुप यहीं जाकर आपके सिर को मारेगा। आप क्या करना, यहाँ से नहीं मारना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ जाओ, यहाँ से जो आप कंकरी मारो ये पूरा खाली मिलेगा। मसनून भी है कि इधर बायां हाथ अपने किबले की तरफ, किबला इधर है, बायां हाथ किबले की तरफ कंकरी ऐसा पकड़ेंगे हाथ में, ये 2 उंगलियों में। कितनी बड़ा मोटी कंकरी, एग्रीगेट कितने का आना देते हैं? 20 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 9। काबुली चना, काबुली चना खजूर की गुठली के बराबर होना। इतने बड़े बड़े कंकरे नहीं, छोटी छोटी कंकरी। जब चुनेंगे आप रात में तो कंकरी कैसी रहना, लेकर जरा मसल को देखना। साल भर वो मुज़दलिफा में, अरफात में जन्नत चलते रहते हैं, बकरियां चलते रहते हैं। अब वहां पर मिट्टी में मेंगनिया पड़ तो क्या है, वो कंकरी की वैसे दिखती हाथ में दिए तो आप ले जाकर जो ना मेंगनी से जो ना रबी कर रहे हैं, बाग कंकरी से रबी करना है। इसलिए उसको जरा ऐसा मसल को देखो, मेंगनी रहे तो फूट जाती। बाज़ मरतबा मुज़दलिफा की कंकरी वो भी नरम होती है। ऐसा कंकरी समझ कर आप बटवे में डाल लिए थे, बटवा यूं 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 होते 70 ले कहते 85 रह जाते, पूरा काम अंदर ले नहीं करता। क्या करना, कंकरी को जरा मसल के देखना, काबुली चने के बराबर लेना, कुछ ज्यादा लेना, मौका मिला तो धो को सुखा को अपने बटवे में रखना। अब यहाँ आ गए तो 7 कंकरियां लेके जाएंगे, एहतियातन 2-4 ज्यादा कंकरियां ले जाकर अपने बाएं हाथ में पकड़ लिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान। एक रिवायत में राजमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान, रहमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान, राजमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान। शैतान को जलील करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं कंकरी मारता हूं। इतना उठा के क्या करना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह, वलिल्लाह की जरूरत, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर राजमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान। इतनी जोर से वो है क्या जरूरत, कैसे ना बात देखना रहता है। वो क्रिकेट बाहर कैसा डालते हैं वैसा डालते। टेंट से निकले थे छतरी ले, वो छतरी भी उठा कर देख रहे, बाटल लेकर निकले थे बाटल भी उठा कर देख रहे, चप्पल लेकर चप्पल भी फेंक रहे। हमारे नबी का ये तरीका नहीं है। हमारे नबी का तरीका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक एक उठा कर पूरे 7 मारे तो 7 नहीं हुई, एक एक करके मारना है। ऐसा मूर्ति बना दो, भीड़ है वो तो यूं मार लेना, एक ही होती, अलग अलग माता कंकरी। और हर कंकरी पर अल्लाह ऐसा गुनाह जो इंसान को हलाक करने वाला है, उस गुनाह की माफी का ऐलान कर देते हैं। अब किसी के हम वकील बन करवाए, इसके वकील बनना, अब इनके वकील बने नहीं, जो ठहर के नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां पहुंचने के काबिल नहीं है, कोई मां को ले जाकर रमी कराने वाला नहीं, वैसे भी रमी हम कर सकते हैं।
हाँ 2002 में हमारे साथ एक वकील साहब थे, जिनके साथ वहाँ था जो हमारा बहस करने वाले, वहाँ के इसको देखो मेरे हाथ से नहीं होता, इसलिए चलते रहो, भीड़ भाड़ में जाते रहो, अंदर की हैबत निकल जाती है। चलिए हो गई। होने के बाद अब दूसरा काम कुर्बानी का। कुर्बानी क्या करेंगे? अक्सर घर कमेटी के तरफ से जाने वाले उनको पहले से जो हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया था कि आज तारीख आखिरी है, लिहाजा आप लोग अपनी जो है ना कुर्बानी की रकम भर दो। बहुत सारे भर दिए, बाद लोग नहीं भरे हैं, बाद लोग किसी के तवज्जुह से करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मगर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस साल ये हुक्म है, या तो हुकूमत के तवज्जुह से कुर्बानी देना है या हुकूमत के अप्रूव्ड स्लॉटर हाउसेस के जरिए से कुर्बानी देना है। इल्लीगल कोई कुर्बानी दे रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो उसकी रकम जब्त, जानवर जब्त और उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके जो है ना कंट्री वालों से एक्शन लिया जाएगा। इसलिए किसी हाजी को भी स्लॉटर हाउस के पास जाने की इजाजत नहीं है इस साल, मैं भी नहीं जा सकता। मोतबर जराए के जरिए हमारी कुर्बानी होती है। सऊदी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो है लाइसेंस होल्डर, लाइसेंस याफ्ता लोगों के जरिए हमारी कुर्बानी होती है। अब हमारे पास कुर्बानी के जानवर के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। 650 रियाल से लेकर 750 रियाल तक के जो है ना कुर्बानी की कीमत है। तो यह जानवर सुबह से अब तक के धूप में गर्मी में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर मगरिब तक बैठने की फिक्र फरमाएं। जब हम मीना में पड़ेंगे, नहीं अगर मौलवी की तरफ से रात में ही जाने के लिए फोर्स किया जाएगा तो फिर हम अरफात चले जाएंगे। आप सबको मालूम है 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा के असर तक तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब इन पर वाजिब है, मुकीम पर वाजिब है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। जो लोग मुकीम हैं, 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर वाजिब है, और जो मुसाफिर हैं, फसर कर रहे हैं, उन पर वाजिब नहीं है, मगर पढ़ना अफजल है। 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक। अब आपको 10 ज़िलहज्जा में क्या काम करना है? 9 ज़िलहज्जा में आपका वक्त गुजरा था अरफात में। अरफात में 2 नमाजें आपने अदा की, एक ज़ोहर की नमाज और एक असर की नमाज। ज़ोहर और असर अगर आप मस्जिद नमीरा में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर दोनों नमाजें ज़ोहर के वक्त में मिलाकर पढ़ी जाएंगी। अगर आप लोग अपने टेंटों में नमाज अदा कर रहे हैं तो मिला के नमाजें नहीं पढ़ना है, बल्कि ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ना है, असर के वक्त में असर पढ़ना है। मुसाफिर है तो पूरी नमाज असर करना है, मुकीम है तो पूरी नमाज पढ़ना। मसला उलमाए किराम से मालूम 9 ज़िलहज्जा की नमाजें ज़ोहर असर पढ़ने के बाद, गुरूब होने के बाद हम लोग मुज़दलिफा पहुंचेंगे। मुज़दलिफा में इशा के वक्त में मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेंगे।
पहले मगरिब की फर्ज पढ़ेंगे, फिर ईशा की फर्ज पढ़ेंगे। मुसाफिर हैं तो ईशा की 4 रकात के बजाय 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें, फिर ईशा की सुन्नतें और वित्र पढ़ेंगे। रात में नमाज पढ़ने के बाद आराम का तकाजा है, आराम कर लेंगे। फिर अल्लाह मौका दिया उठकर तहज्जुद पढ़ लेंगे। फिर हो सका तो हम कंकरी जमरात की रमी जो की जाती है, कंकरी मुज़दलिफा से उठाएंगे। अगर कोई कंकरी नहीं उठा लिया, 10 ज़िलहिज्जा की कंकरी तो मुज़दलिफा से ही लेना मसनून है। 11-12 ज़िलहिज्जा की कंकरी अगर यहाँ से नहीं उठाए हैं तो आप मीना से भी दोनों कंकरी चुन सकते हैं। अफजल यही है कि हम मुज़दलिफा से कंकरी ले लें तीनों दिनों की। रमी करने का तरीका आपको बतलाया गया। 10 ज़िलहिज्जा को सुबह से लेके दूसरे दिन सुबह तक के रमी का वक्त है, और 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े जमरे की, बड़े शैतान की रमी करना है, बड़े शैतान को कंकरी मारना है। हम मीना से जब जमरात की तरफ निकलेंगे तो पहले छोटा शैतान आएगा, फिर उसके बाद में दरमियानी शैतान आएगा, फिर उसके बाद में बड़ा शैतान आएगा। शैतान ये हमारे आम ज़बानों में है, असल में इसको जमरात कहा जाता है। जमरा एक है, एक से जायद को जमरात कहा जाता है। तो 10 ज़िलहिज्जा को हम बड़े जमरे की रमी करेंगे। रमी करने के बाद हटकर दुआ नहीं करना है। बड़े जमरे पर रमी करने के बाद, रमी होने के बाद अपनी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के बाद हलफ बनाना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तहकीक के मुताबिक, दलाइल के मुताबिक 3 चीजों में तरतीब वाजिब है। तरतीब बिगड़ गई तो दम आ जाता है। 3 चीजें क्या हैं? पहले कंकरी होगी, उसके बाद कुर्बानी होगी, उसके बाद में हलफ बनाया जाएगा। अगर कंकरी से पहले कुर्बानी हुई या कुर्बानी से पहले हलफ बनाया तो दम वाजिब हो जाएगा। मगर आजकल के हालात ये हुकूमत के सहज में है। रमी के लिए हमारे को पाबंदी लगाई गई है कि हुकूमत के तरफ से हमारे मुअल्लिम को जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम में रमी के लिए हमें जाना पड़ता है। और हुकूमत के तरफ से पाबंदी है कि हुकूमत के तहत में आपकी कुर्बानी होगी, आप अपनी इनफरादी कुर्बानी नहीं दे सकते। इस हिसाब से तरतीब बिगड़ गई तो साहिबीन के फतवे के हिसाब से तरतीब बिगड़ने पर कोई जुर्माना नहीं है। हम माजूर हैं, उज़्र वाले हैं, इसलिए तरतीब के बिगड़ने पर हम पर कोई जुर्माना नहीं है। चलिए 10 ज़िलहिज्जा को आपके तीनों चीजें हो गई। अब रात में आपको जाना है तवाफ़े ज़ियारत के वास्ते। हज के 3 फराइज़ हैं। हज के 3 फराइज़ में 8 ज़िलहिज्जा को या 7 ज़िलहिज्जा की रात को हज के इरादे से इहराम बांध के नियत तलबिया के साथ पढ़ लिए। एक फर्ज हो गया। दूसरा फर्ज है वकूफ अरफा। अरफात के अंदर ठहरना ये फर्ज है। और अरफात के अंदर ज़वाल से लेके गुरूब तक ठहरना वाजिब है। अगर कोई आदमी थोड़ी देर ठहर के निकल गया या वहां से अरफात के हुदूद में से गुजर गया तब भी उसका फर्ज अदा हो जाता है, मगर वाजिब के छूटने से उस पर दम आता है। वाजिब क्या है? ज़वाल से लेके गुरूब तक, यानी कब भी पहुंचे गुरूब तक ठहरना वाजिब। गुरूब से पहले अरफात छोड़ेंगे तो दम वाजिब आ जाता है। चलिए, आपका 10 ज़िलहिज्जा का मामला खत्म हो गया।
بہتر یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے رات میں عشاء کے بعد چلے جائیں۔ دن میں جانے سے بھیڑ بھاڑ زیادہ رہتی ہے۔ جتنے جمرے کی روی کرتے ہیں وہ سب کے سب طواف زیارت کے واسطے مکہ جاتے ہیں۔ مکہ جانے کی وجہ سے بھیڑ بہت بڑھ جاتی ہے، اس میں آپ کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ٹھنڈے وقت میں رات میں عشاء کے بعد طواف زیارت کے لیے چلے جائیں مکے کو۔ مینا سے مکہ جانا ہے طواف زیارت کے لیے، اب اس کے لیے محلے کی طرف سے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں رہتا، خود کی جو ہے نا آپ کو سواری کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ سواری کے لیے مینا کے حدود میں بھی کوئی آپ کو سواری نہیں ملتی۔ مینا کے حدود کے باہر عزیزیہ میں جانا پڑے گا، یا پھر آپ کو جمرات کے سے آگے نکل کر عزیزیہ شمالیہ میں جانا پڑے گا۔ بعض مرتبہ شام کے ٹائم مینا کے اندر 3 کبری ہیں، 3 برج ہیں، ان پہ گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ کوئی برج پہ چڑھ گیا تو حرم کو جانے کے لیے وہاں سے سواریاں مل جاتی ہیں، شیرنگ پہ آپ کو سواریاں مل جاتی ہیں۔ کوئی کہہ لے کہ حرم وہ جو ہے آپ کو حرم کے لیے کچھ اختیار بتائے گا، وہ لے جا کر حرم کے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ وہاں سے آپ حرم میں آنا اور آ کر طواف زیارت کرنا۔ سب کی توجہ ادھر ہے یا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ یا سنتے بھی رہیں، اسکرین پر نظارہ کرتے بھی رہیں، دھیان ادھر رہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے۔ طواف زیارت کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 کے غروب سے پہلے تک طواف زیارت کرنا ہے، چاہے دن میں کر لو چاہے رات میں کر لو۔ 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ طواف زیارت کرنا ہے۔ 10 کو نہیں کر سکے 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکے 12 کے غروب سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہو جائے۔ ان دنوں میں اگر خواتین میں سے کسی کو کوئی عذر آ گیا تو پھر وہ اس عذر کی وجہ سے جب تک کہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے انتظار کرے۔ جب نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی 12 گزرتا کیوں نہیں، 13 کو قابل ہو گئی، 14 کو قابل ہو گئی، 15 کو قابل ہو گئی، جب بھی یہ پاک ہو گئی تب جو نہا دھو کر یہ طواف زیارت کرتے ہیں۔ نہا دھونے میں خوشبو کا صابن اگر کو 3 دن ٹکڑی مارنا ایک واجب، دوسرا واجب قربانی دینا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے، یہ آپ کی عام جو حجات دیتے ہیں وہ قربانی نہیں۔ تیسرا واجب حلق بنانا، چوتھا واجب وقوف مزدلفہ، 5واں واجب حج کی سعی کرنا، اور 6واں واجب طواف وداع کرنا۔ یہ 6 واجب ہیں حج کے۔ تو 10 ذی الحجہ کے کام ختم ہو گئے۔ طواف زیارت اگر موقع مل رہا ہے تو آپ حج کی سعی کر کے بھی آ جامیں مینا، چاہے پوری رات گزر جاوے، آپ ایک عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ رات مینا میں گزارنا ہے،
फजीलत है मीना की वो छूट गई। आपके हज के वसाब में कोई कमी नहीं है। आप सही से फारिग होकर आप मीना आ जाएंगे। मीना आने के बाद 11 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा को तीनों शैतानों की, तीनों जमरात की रमी करना। उसका टाइम सुबह से नहीं है, उसका वक्त जो शुरू होता है ज़वाल के बाद शुरू होता है। दूसरे ममालिक के हुज्जाज किराम वो ज़वाल से पहले रमी करने चले जाते हैं। उनका देखा देखी अगर हम ज़वाल से पहले 11 जिलहज्जा को रमी करेंगे, हमारी रमी नहीं होगी। ज़वाल के माने सूरज सर पे आके ढल रहा है, ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। ज़ोहर का जब वक्त शुरू हो जाता है, दूसरे दिन के रमी का वक्त शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? दूसरे दिन तीनों शैतानों की रमी करेंगे। कब तक करेंगे? दूसरे दिन सुबह सादिक तक के वक्त है। उमूमी तौर पर शाम में भीड़ भाड़ कम हो जाती है असर के बाद। ऐसे वक्त में हम चले जावे, ठंडा वक्त रहता है, रमी कर लें। अगर 10 जिलहज्जा को हमारा तवाफ़े ज़ियारत नहीं हुआ तो 11 जिलहज्जा को कर सकते हैं। 10 जिलहज्जा को हमारी कुर्बानी नहीं हुई तो 11 जिलहज्जा को कर सकते हैं। कुर्बानी होने के बाद हम हरम बनाएंगे। फिर वापिस टेंटों में आ गए। तीनों शैतानों को कंकरी करने के वक्त, कंकरी मारने के बाद आराम कर लिए। अब कोई काम नहीं, जिक्र, तिलावत, दुआ, आराम का मौका है। फिर 12 जिलहज्जा की रमी बाकी है। 12 जिलहज्जा की रमी कब करेंगे? उसका भी टाइम 12 जिलहज्जा के ज़वाल के बाद शुरू होता है। सूरज ढलने के बाद ज़ोहर का जब वक्त होता है तब उसका वक्त शुरू हो जाता है। उसका टाइम भी कब तक रहता है? सुबह सादिक तक रहता है। मगर एक चीज है, वो चीज ये है कि 12 जिलहज्जा के गुरूब से पहले मीना को छोड़ना अफजल है। मीना को छोड़ना क्या है? अफजल है। इसलिए हम क्या करेंगे? 12 की रमी करके या तो वहीं से बाहर निकल जावे, टैक्सी पकड़कर अपने होटल को पहुंच जावे, या तो फिर टेंट में आ जावे। यहाँ पर मुअल्लिम की तरफ से आपके होटल को गुरूब से पहले ले जाने का नज़म रहता है। अब कोई रुक गया, इतनी देर हो गई कि सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, तो भी कोई हर्ज नहीं, आप मीना छोड़ सकते हैं। इशा का वक्त हो गया तो भी कोई हर्ज नहीं, आप मीना छोड़ सकते हैं। इतनी रात हो गई कि सुबह सादिक हो गई तो आप मीना छोड़ नहीं सकते। 13 की रमी करके जाना वाजिब है। क्या है? सब सुन रहे हैं या कंफ्यूज में है? सबकी तवज्जो है सब? ये बहुत तफसील के साथ आपके जहन में ये बात बिठाई जा रही है। जहन में बिठा दें कि किसी की मीना के अंदर इतनी ताकीर हो गई कि सुबह सादिक हो गई तो आप मीना छोड़ने की इजाजत नहीं जब तक के 13 की रमी न करे। 13 की रमी का भी वक्त ज़वाल के बाद होता है। अफजल यह है कि ज़वाल तक के इंतजार करे, मगर इजाजत है, कोई ज़वाल तक ठहर नहीं सकता, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं खाने पीने का, तो वैसी सूरत में सुबह इशराक के बाद रमी करके फिर मक्का जा सकता है। हज के पूरे काम खत्म हो गए, अब एक काम रह गया, तवाफ़े विदा। तवाफ़े विदा हो गया, आपका हज हो गया। वैसे आप हाजी बन गए वुकूफ़ अरफात के बाद, वुकूफ़ अरफात कर लिए, आप हाजी बन गए, मगर पूरे पक्के हाजी बनना है। हज मबरूर आपको
तवाफ विदा कब करेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं, पुराने लोग और जो अधूरे हाजी हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, तवाफ विदा एक मर्तबा कर दिए तो वापिस हरम में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ मसला नहीं। बाद लोग बोलते हैं वो आखिर में करना, आखिर तक पेंडिंग नहीं रखना। आखिर तक पेंडिंग रखे, कोई उधर आ गया, बीमार पड़ गए या अचानक कोई हादसा आ गया, आपका तवाफ विदा रह जाता। इसलिए मक्का जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक तवाफ कर लेंगे तवाफ विदा की नीयत से। बाद में फिर आपको तवाफ करने का इरादा हो रहा है तो पहला नफिल हो जाएगा, बाद वाला तवाफ विदा हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तवाफ विदा करने के बाद भी आप हरम में जा सकते, दूसरे उम्रे कर सकते, तवाफ कर सकते, सही कर सकते। तवाफ विदा से पहले दूसरा उम्रा नहीं कर सकते। तवाफ विदा के से पहले दूसरा उम्रा ना करें, एक नफली तवाफ कर लें, फिर बाद में आप चाहे तो ताइफ जाए, जीराना जाए, हुदैबिया जाए, अरफात जाए, जुल्हुलैफा जाए, जहां चाहे जा सकते। ये हज के मसाइल आपके जहन में बिठाए गए हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा, एक मसला पूछा जा रहा है, वहां की जो कुर्बानी है, वहां करने के बाद भी हमारी यहाँ की कुर्बानी करना क्या? असल अगर हम मुसाफिर बन गए वहां जाने के बाद तो यहाँ की कुर्बानी वाजिब नहीं है, मगर हमेशा जो देते हैं तरतीब है उसको छोड़ना नहीं है। क्या फजीलत है? कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है। कितने बार होते हैं एक जानवर पर? कोई गिन सकता है? अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह का दिया हुआ माल, उसके खर्च करने में अपन कंजूसी नहीं करना। वहां की तो हज की शुक्राने की कुर्बानी है, यहाँ की तो साहिब निसाब की कुर्बानी है, ये दे दूंगा। अब यहाँ की कुर्बानी के बचने के वास्ते वहां मुसाफिर बनने के रास्ते पर मत ढूंढो। यहाँ की कुर्बानी होने दो और वहां के जो है ना जो फजीलतें हैं वो हासिल कर लें। और कोई बात सुन को पूरा दिमाग में बैठ गया, मैं भी तकरीर कर सकता हूँ। जितने बैठे ना सब यही सोच रहे होंगे, 5-6 क्या अटेंड कर लिया, सब बैठ गया, जरूरत नहीं कुछ पूछने की, इतने किताबा पढ़ लिया, अब सुनने की जरूरत नहीं। जी जी हाँ, देखो हज का शियार, हाजी की पहचान क्या है? तलबिया। तलबिया को खूब सीख के जाओ। तलबिया पढ़ाना नहीं है, तलबिया पढ़ना है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये तलबिया पढ़ना नहीं कहलाया जाता है, बल्कि मेरे साथ आप भी तलबिया पढ़ते रहे, ये तलबिया पढ़ना होता है। मसलन मैं कहूं लब्बैक बोले तो आप भी लब्बैक बोलते, ला शरीक लगा लब्बैक बोले तो आप भी ला शरीक, ये जो है ये बढ़ाना होता है। आप क्या करना मेरे साथ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लगा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। ये हाजी की पहचान, हाजी का शियार,
जब भी किसी से मुलाकात होगी पहले तलबिया पढ़ेंगे, फिर जो है ना हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, तलबिया उम्रे का कब खत्म होता, हज का कब खत्म होता? उम्रे का जो तलबिया खत्म होता है, आप हरम में दाखिल हो गए, अब तवाफ करने का इरादा हो गया, आपका तलबिया खत्म। अब तवाफ के चक्रा में तलबिया नहीं पढ़ना, तवाफ के चक्रों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक नहीं, आपका तलबिया खत्म। अब क्या पढ़े? दुआएं करते रहे। ऐसे ही हज का तलबिया कब खत्म होता? हज का तलबिया खत्म होता है जब 10 ज़िलहिज्जा को अब शैतान को कंकरी मारने के लिए पहुंचे हैं, तब तक तलबिया पढ़ेंगे। अब रमी शुरू हो रही है, तलबिया खत्म। हज का तलबिया शैतान के कंकरी मारने से पहले खत्म हो जाता है, और उम्रे का तलबिया तवाफ शुरू होने से पहले हो जाता है। और कोई बात पूछना है? बहुत हो गया, छुट्टी दे दो, अच्छा रहता है जी। के बाद हुदूद हरम, हुदूद हरम आपको एक नक्शा बताया गया था, है भाई? इसके अंदर ही कुर्बानी देना। दम भी हमारे ऊपर आ गया कोई, तो इसके अंदर ही जागो में यादें तो नहीं, जागो यादें तो नहीं, हुदूद हरम के अंदर ही हमारा दम और हमारी कुर्बानी होगी। अलबत्ता यहाँ की जो कुर्बानी है, चाहे तो आप यहाँ दे दें, इस्तेदाद है तो मारियानों की शक्ल में यहाँ की कुर्बानी वहां भी दे सकते हैं, मगर वहां की कुर्बानी, वहां का दम यहाँ नहीं दे सकते। और जब तक के एहराम कब उतरता है, हज का एहराम उतरता है रमी के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद हलक, हलक के बाद एहराम उतरता है। जब तक कि ये तीनों अमल नहीं होते हमारा एहराम नहीं उतरता, हालत एहराम में रहना। अच्छा, अब हलक क्या बनाएंगे? हजामा के दुकाना भी नामे नहीं मिलते, अब करना क्या, कैसा करेंगे बोलो? इतना क्या है, यूं की जो प्रैक्टिस करते हैं, यूं की प्रैक्टिस करते हैं। गुस्ल करना क्या नहीं जी, हलाक के बाद गुस्ल करना क्या नहीं, इख्तियार है। हलाक के बाद गुस्ल करना, अगर नापाकी की हालत में है तो करना, नहीं है करने का जाहिर बात है। बाना हलक बनाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा बना था, पसीना निकला हुआ, खूब मेहनत किए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में गुस्ल करके जरा फ्रेश हो जाओ, कोई हर्ज नहीं। मौका नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, यूँ साफ कर दिए, हजाम तो साफ करता है, थोड़ा पानी छिनकता, बॉर्डर छिनकता, ब्रश से मार देता, कपड़े से पोंछ देता, राइट, कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। मीना ज़ियारत सिविल ड्रेस में या एहराम में जा सकते। अच्छा, अब आपका एहराम नहीं उतर गया, क्या उतर गया? कुर्बानी के बाद हलक बना दिए, आप नागो के ये ड्रेस पे आ गए, तो तवाफ ज़ियारत सिविल ड्रेस पे होगा, हज की सही भी सिविल ड्रेस पे होगी। अगर कुर्बानी और हलक नहीं हुआ है तो फिर एहराम में होगा। अच्छा, वहां पर मुताफ में जाने के लिए आम दिनों में एहराम के बगैर एंट्री नहीं है, मुअतमिर के लिए, उम्रा करने वाले के लिए जनरल एंट्री है, मगर ये हज के दिनों में 15 मुहर्रम, ये 15 ज़िलहिज्जा तक
सिविल ड्रेस पे भी एंट्री मिलती है, क्योंकि तवाफ ज़ियारत वाले रहते हैं, सही वाले रहते हैं, तवाफ विदा वाले रहते हैं, उनको ये ड्रेस के अंदर एंट्री मिल जाती है, वो ताप में जा सकते हैं। ठीक है, और कोई बात पूछना है? बात 10 बजे आए, 10:30, 11 बजे आए, जब भी आए, जब से लेके अब तक बोले तो मामूली बात नहीं, समझने की बात। अच्छों की जो है फिरती है, इतनी देर बिताए तो हज के कबूलियत के 3 बातें हमारे मुंसाफ बताए, जब उनके एक साथ सवाल कर रहे वो अधूरे रह गए थे। सबसे पहले इतना जहन में रखो, अल्लाह उसी अमल को कबूल करता है जो अमल नबी के तरीके से हो। दूसरा, अल्लाह उस अमल को कबूल करता है जो अल्लाह के लिए किया जाएगा। तीसरा, वो अमल कबूल होता है जिसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना हो, गुनाहों से बचा जाए। ये काम करेंगे तो हज मबरूर हमारा हज कहलाएगा, हज मबरूर और हज मकबूल कहलाएगा। इसके अलावा हमारे ब्रादर सगीर के जहन में और कुछ बातें होंगी, मेरे जहन में ये बातें थी, मैंने आपको सुना दिया। अभी उनका भी मौका आपके सामने आ रहा है। मदीने मुनव्वरा की हाजिरी की और वहाँ की ज़ियारत की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उनसे भी जो है आप मुस्तफीद हो जाएं। कुछ जो है बातें छूट गई तो तफसील के साथ ऐसी जो है मौका नहीं है, वरना वसीयत वहाँ की जो है चीज़ें एक चीज़ आदमी के रोंगटे खड़े करने वाली है, एक तारीखी वाक़िया आदमी के रोंगटे खड़ा करने वाला। उसकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह सामने आएंगी। थोड़ी देर हमारे भाई साहब आपके सामने बयान करेंगे, मदीने की हाजिरी के आदाब बताएंगे। फिर मौका मिला 5-7 मिनट आखिर में तकमील की बात